اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ کام تمام میسر ہوندے نام اودا چت دریاں، رحمو سکے ساوے کردہ کیرو ساڑے ہریاں۔ بادشاہاں تھی بیک منگاوے تے تخت بہاوے کائی، کچھ پرواہ نہیں گر اس دے دائم بے پروائی۔ واہ کریم امت دا والی مہر شفاعت کردہ، جبرائیل جئے جس چاکر نبیاں دا سرکردہ۔ او محبوب حبیب ربانہ حامی روز حشر دا، آپ یتیم یتیماں تائیں ہاتھ سرے تے تردہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ اس کائنات ساری کا خالق ہے۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ کوئی دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جتنی بڑی یہ کائنات ہے، کوئی ذہن کوئی عقل اس کی وسعت کو بھی پا نہیں سکتی۔ صرف ایک درخت ہے چھٹے آسمان پر جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں، تنا لمبا ہوتا جاتا ہے، اتنا لمبا کہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ ایک درخت اتنا لمبا کہ چھٹے سے شروع ہوا، ساتویں آسمان سے بھی آگے نکل گیا۔ چھٹے سے لے کے ساتویں آسمان تک کا فاصلہ 500 سالوں کا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ 500 سالوں کا کس چیز کا؟ ایک گھوڑے کے دوڑنے کا نہیں، روشنی کی رفتار۔ روشنی اگر چلے تو 500 سال تک چلے، چھٹے آسمان سے ساتویں تک پہنچتی ہے روشنی کی رفتار یہ ہے کہ سورج ہم سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس سورج سے زمین تک روشنی آنے میں صرف 8 منٹ لگتے ہیں۔ جو روشنی 8 منٹوں کے اندر 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر جاتی ہے، 8 منٹوں کے اندر، وہ اگر 1 گھنٹے تک چلے گی تو کتنی دور تک آگے چلے جائے گی؟ اگر 1 گھنٹے تک وہ اتنا فاصلہ طے کرے، 1 دن میں کتنا ہوگا، 1 مہینے میں کتنا ہوگا، 1 سال میں کتنا ہوگا؟ اور یہاں تو ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ 500 سالوں کا فاصلہ ہے۔ روشنی چلے اور 500 سال میں، پھر ساتویں سے بھی اوپر سدرا کی جہاں ٹہنیاں ہیں وہاں تک کا فاصلہ پھر 500 سال۔ سدرا کی ٹہنیاں جہاں سے شروع ہوں گی اور پھر وہ جہاں تک جہاں کے اوپر درخت کا چھجا ختم ہوتا ہے، اس کا پھر فاصلہ 500 سال ہے۔ اتنا بلند یہ درخت ہے، اور اس کے اتنے بڑے بڑے پتے ہیں، اس درخت کے اتنے بڑے بڑے پتے ہیں کہ سرکار نے معراج کی رات دیکھا تھا نا، تو آپ نے آ کے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سدرا کتنا بڑا درخت ہے؟ فرمایا فَإِذَا كُلُّ وِرَقَةٍ مِّنْهَا تُغَطِّي هَٰذِهِ الْأُمَّةَ، اس کا ایک ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ ہر پتے کے نیچے پوری امت آ جاتی ہے۔ ایک پتے کے نیچے پوری امت۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک پتے کے نیچے پورا ملک آ جاتا ہے، ملک نہیں، ایک پتے کے نیچے پوری امت آ جاتی ہے۔ اب وہ کتنا بڑا درخت ہے جس کا ایک ایک پتا اتنا بڑا ہے،
कौन इस कायनात की वसअतों को जान सकता है? इतनी बड़ी कायनात का बनाने वाला है अल्लाह, वो है खालिक, और वो राज जान ही नहीं सकते हम कि कितनी बड़ी वसी कायनात है। हमारे साइंसदान ये कह रहे हैं कि हमने इस कायनात का, पहले इनका ख्याल था, पहले इनका ख्याल था कि हमने 100 में से 8 हिस्से कायनात देख ली है, 100 में से। अब वो कहते हैं नहीं, हमने एक हिस्सा भी पूरा नहीं देखा अभी तक, 100 में से एक हिस्सा भी पूरा कायनात का नहीं देखा। इतनी बड़ी कायनात, और उस कायनात का पैदा करने वाला है अल्लाह, खालिक कायनात। कमाल यह है कि उस परवरदिगार ने अपनी इस सारी खलकत की बुनियाद रहमत पर रखी हुई है। वो कहता है मैंने रहमत से इसे पैदा किया है। अब जाहिर है जब पैदा करने की बुनियाद रहमत रखी है तो फिर इनकी जिंदगियों में भी, इस कायनात की सारी जिंदगी में मेरी रहमत शामिल रहेगी, मैं पालूंगा इसको। सूरह मुल्क में परवरदिगार आलम ने यही फरमाया था, अपनी नजर को दौड़ाओ, जितना मर्जी दौड़ाओ, मा तरा फी खल्किर रहमान मिन तफावुत, तुम्हें रहमान की मखलूक में कोई कमी नजर नहीं आए। किसकी मखलूक में? लफ्ज पे गौर करना है आपने, ये नहीं फरमाया तुम्हें अल्लाह की मखलूक में कोई कमी नजर नहीं आएगी, फरमाया तुम्हें रहमान की मखलूक में कोई कमी नजर नहीं आएगी। जहां वो अपनी खलकत की बात करता है वहां अपना नाम रहमान बताता, रहमान, रहम, रहमत, वो है ही रहमत। वो कहता है मेरा खलकत के साथ जो रिश्ता है वो रहमत का रिश्ता है, मखलूक के साथ रिश्ता रहमत का रिश्ता है। और इस रहमत का भी फिर कमाल किया। इरशाद फरमाता है, सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इस दुनिया को जब बनाया है तो अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्सा जमीन पे उतारा, 99 अपने हाथ में रखे। वो जो एक हिस्सा जमीन पे उतारा है, हुजूर फरमाते हैं माँ अपने बच्चे के लिए अगर तड़प रही है तो ये उस एक रहमत का हिस्सा है, उस एक रहमत में से माँ को ये हिस्सा मिला है। खा वो माँ इंसान की हो, खा वो माँ जानवर की हो, वो माँ जंगली दरिंदे की हो, अपने बच्चे के लिए तड़पती है, उसे एक रहमत में से कुछ हिस्सा मिला है। तो जहां 99 रहमतें वो अपने पास रख के बैठा हुआ है, एक रहमत का करिश्मा इतना है तो 99 जहां पर अलग महफूज हैं, उनका मामला क्या होगा? वो कहता है मैं रहमान हूं। और यही तारफ उसने करवाया है अपनी कुरान मजीद की इस सूरत में, जिसका नाम ही रखा है सूरह रहमान। सूरह रहमान, इसकी पहली आयत सिर्फ उसका नाम है, और रहमान, वो रहमान है, रहमान। सूरह रहमान के ऊपर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। ये सूरह वो है जिसे कुरान मजीद की साज दाज जीनत दुल्हन करार दिया गया। ये जीनत है कुरान, ये हुस्न है कुरान का, ये सजावट है कुरान। कुरान के हुस्न का रंग अगर कोई देखना चाहता है तो सूरह रहमान को देखे। लेकिन हम इसको समझने में थोड़ी सी गलती भी करते हैं। सूरह रहमान में एक आयत बार बार आती है और वो हम सारे जानते हैं, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसका ये आयत इस सूरत में 31 मरतबा आई है। 71 आयतों की पूरी सूरत और उसमें 31 मरतबा यही आयत बार बार अल्लाह कह रहा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम इसका मतलब जो करते हैं वो क्या है? हम इसका तर्जमा करते हैं तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। इसका मतलब है खुदा ने इतनी नेमतें की हैं, तुम अगर एक को जुटलाने की कोशिश करोगे उससे बड़ी दूसरी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए।
तुम उसका इनकार करने की कोशिश करोगे, तीसरी उससे भी बड़ी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। तुम नेमतों का इनकार करते जाओगे, मगर नेमतों के अंबार तुम्हारे सामने खड़े होते चले जाएंगे और तुम नेमतों को जुटला नहीं सकोगे। बिल आखिर तुम्हें मानना पड़ेगा मौला ही की मेहरबानी है कि मैं जी रहा हूं। उसकी नेमतें जिन्हें जुटलाया नहीं जा सकता। बात सही, सच। इस आयत का ये मतलब है, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का मतलब ये है तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। लेकिन 31 आयतों में हर जगह यही मतलब नहीं। ये मैं नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, इसको समझिएगा जरा। 31 मरतबा ये आयत आई, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लेकिन हर जगह इसका मतलब नेमत नहीं है। इसमें लफ्ज है आला, फ़बिअय्यि आलाए, आला इसका मतलब हम करते हैं नेमत, मगर कुरान के मुताबिक हर जगह इसका मतलब सिर्फ नेमत नहीं। मैं इसी सूरत की कुछ आयतों से आपके सामने ये रखना चाहता हूं ताकि अपनी बात को आगे बढ़ा सकूं। लफ्ज आला के 3 मतलब होते हैं। एक मतलब होता है नेमत, एक मतलब होता है शान, खूबी, सिफ्त, और एक मतलब होता है कुदरत। आला के 3 मतलब, एक मतलब नेमत, दूसरा मतलब खूबी या शान, और तीसरा मतलब है कुदरत। हर जगह इस लफ्ज का मतलब नेमत नहीं लगता। मसलन इसी सूरह रहमान की आयत नंबर 30 से जब हम आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 30, पहले तो चलो आयतों में बात हुई, लेकिन जब आयत नंबर 30 से आगे हम बढ़े तो वहां पर परवरदिगार आलम का जो अंदाज है जरा उस पर गौर करें। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब अंदाज देखिएगा कुरान का, सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, ऐ जिन्नों और इंसानों, तुम्हें जो मोहलत दी गई है बहुत जल्द वो मोहलत खत्म होने वाली है और हम तुम्हारा हिसाब करने के लिए तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने वाले। मुतवज्जे होंगे किस काम के लिए? तुम्हें खड़ा करना है अपने सामने, तुम्हारा हिसाब करना जल्द। अब इसमें किसी नेमत का बयान है? तुम्हारा हिसाब करने के लिए तुम्हें खड़ा करना है, हम तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होंगे। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन्नों और ऐ इंसानों, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि आसमानों और जमीन के किनारों से बाहर निकल जाओ तो निकल के दिखाओ जरा, निकलो जरा, निकल के दिखाओ। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, हरगिज़ नहीं निकल सकते तुम सिवाय सुल्तान की मदद के। अब ये एक लफ्ज गहरा है, इस पर अलग किसी वक्त हम बात करेंगे। यहां सुल्तान से क्या मुराद है और वो किसी को मिलती भी है उसकी मदद या नहीं मिलती। आसमान और जमीन के किनारों से बाहर तुम नहीं निकल सकते। आयत कह रही है तुम आसमानों और जमीन के किनारों से बाहर नहीं निकल सकते, और आगे फरमाया फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो क्या यहाँ कोई नेमत है जो अल्लाह बयान कर रहा है? हम नहीं निकल सकते, तुम आसमान और जमीन के किनारों से बाहर नहीं निकल सकते। इसमें अल्लाह ने अपनी किसी नेमत का बयान किया। अब आगे फरमाए फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कैसे मतलब होगा कि तुम कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? भाई नेमत का तो बयान ही नहीं कर रहा, बयान तो कर रहा है बेबसी का। तुम इतने बेबस हो और खुदा की कायनात इतनी बड़ी है और उसकी सरहदें इतनी महफूज हैं क्या तुम उनसे बाहर नहीं निकल सकते? तुम तो आजिज़ हो, बेबस हो, कमजोर हो। इसमें नेमत क्या है? इसका मतलब है इसमें नेमत की बात नहीं है, इसमें बात है उसकी कुदरत की। मैंने कैसे बनाए हैं आसमान,
کیسی زمین، کیسی سرحدیں بنائی ہے، میری قدرت دیکھو، میں نے ہر چیز کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت